चल रहे हैं, अभी सर आ गए मेरे ख्याल में। वैसे म्यूट किया हुआ है सर ने खुद को। सर आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट है सर, आवाज नहीं आ रही। क्रिटिसिज्म के हवाले से बात कर रहे थे कि जॉनसन believes that Macbeth is not a tragedy because it fails to arouse emotions of pity and fear, and hero is the villain. A romantic critics tries to create some space for Macbeth. Among romantic critics, William Hazlitt draws a comparison of Macbeth and Richard III, and he believes that Macbeth's conscience is alive and Richard III's conscience is not alive. Both are killers, but Macbeth seems hero and Richard III does not seem a tragedy. That's William Hazlitt's ground, that on which you can say later on Macbeth was introduced as a tragic hero. It was later on explained and extended by Bradley, who also called him a tragic hero. Coleridge ने मैकबेथ पर लेक्चर्स दिए, and in his lectures he discussed superstitions of Macbeth and also you can say pointed out interpolation of Porter's Scene. Coleridge had a view that Porter's Scene was not written by William Shakespeare, it was acted by actors later on for the sake of fun. He thought it against the spirit of the play. But another critic, that is called Thomas de Quincey, post-romantic and Victorian critic, known for his book. That book was about Coleridge actually, The Adventure of Opium Eater. Quincey defends Porter's Scene and he identified, you can say, link of Porter's Scene with the rest of the play and marked Shakespearean language. Bradley expanded Hazlitt's views of drawing a comparison of Macbeth and Richard III and claiming him a hero, making a character analysis and psychological realism. He also pointed out that Macbeth tragedy does not lie in the acts of the hero. Macbeth's tragedy lies in comparison and contrast, are contrasting forces in the play that move side by side, and these forces are light versus darkness. And he says that Macbeth actually is moving in these two shades, lights and darkness, but it's his conscience which was identified Hazlitt that makes him a tragic hero. Contemporary criticism has seen, you can say, Wilson Knight in different episode. Wilson Knight actually wrote a famous articles, how many children Lady Macbeth have. So Lady Macbeth's children discussion, you can say,
was one part whether she had a children and children from her husband and what was its impact. And that debate was extra textual. Likewise, new historicist critics like Foucault and Greenblatt, they pointed out that Macbeth's crime is not heinous if it is seen in its social and political context, because there was no option to be a king and he had to take only available option to be a king. In a democracy, he could easily evade murder and attain his desire. But in a monarchy, in dictatorship, he couldn't. ये आज का लेक्चर है। इस वक्त आपको एक तो पहला पॉइंट है कि मैकबथ से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैकबथ में जो क्वेश्चन है, मैकबथ एज ए ट्रेजिक हीरो कंपेयरिंग विद रिचर्ड थर्ड, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हैजलेट व्यूज है उसकी लाइट में ही आपने उसको कंपेयर करना है। वो पूरा जो ड्रामा है उसको आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो पहला तो ये टॉपिक होगा मैकबथ एज अ ट्रेजिक हीरो कंपेयरिंग विद रिचर्ड थर्ड, और यही क्वेश्चन जो है वो इस वीक के डिस्कशन बोर्ड में भी है। सेकंड क्वेश्चन इज theme of evil in Macbeth, whether it is the hereditary that plays dominant role or is it environment that plays key role in evil of Macbeth। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो इस प्लेस से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। अभी एग्जाम्स के पैटर्न के हवाले से कोई फाइनल डिसीजन नहीं मिला, जैसे ही मिलेगा वो आप तक शेयर कर दिया जाए। अब आपके जो क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी। वी हैव टू वाइंड अप विद इन अ फ्यू मिनट्स। जी फायदा प्लीज। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस प्लीज, आप बात करें। हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि काइंडली डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट एंड टर्म पेपर, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या होने चाहिए लिखते हुए? एक तो ये है कि जो टर्म पेपर है उसको मैंने कुछ स्टूडेंट को तो शेयर किया था। एक सीनियर क्लास आपकी जो थी उसका एक टर्म पेपर था, तो वो मैंने शेयर किया है। अब एक तो ये हो सकता है कि मैं जो आपकी ग्रुप है उसमें शेयर कर दूं, तो आप उसको फौरी डाउनलोड करके या अपने पास सेव करके तो उसको बाद में वहां से डिलीट कर, क्योंकि ग्रुप में हमें कहा गया था कि आप कुछ इंफॉर्मेशन जो है इस तरह से शेयर नहीं करेंगे। तो पहले भी यही होता है कि सीआर को जो है वो शेयर कर दिया जाता है, वो बाकी क्लास के साथ शेयर करता है। तो एक तो ये हो सकता है कि जिन स्टूडेंट के पास है वो बाकी क्लास वाले उसको शेयर कर दे। दूसरा ये कि मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर दूं, तो आप वहां से उसको जो है वो लेकर उसको ले लें और वहां से हम उसको बाद में डिलीट कर दें। दूसरा ये कि ओके सर। टर्म पेपर और के सर हवाले मेरा से सेकंड क्वेश्चन ये है कि जिस जी टर्म पेपर के हवाले से ये कि आपका टॉपिक एक्सप्लोरेटरी होना चाहिए, उसमें कुछ साबित करने वाली बात हो जिसके लिए कुछ आर्गूमेंट किए जाए। आप कोशिश करें कि शेक्सपियर ओके को कंटेम्प्रेरी लिटरेचर या कंटेम्प्रेरी थ्योरी के साथ रिलेट करके जो है वो इंटरप्रेट करें। उसके वो थीम जो एस्टेब्लिश है उनके ऊपर टर्म पेपर नहीं हो सकता। मार्लो के साथ कई लोग खामखाई शेक्सपियर को जोड़ के वो बना रहे हैं टॉपिक, वो मैंने
किसी को इजाजत नहीं दी, ना कोई स्टूडेंट ऐसा कर सकता है। अगर करने वाली बात हो तो वो उसमें कुछ हो तो फिर बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं वो सब पुलिस है, उसकी कोई इजाजत। टर्म पेपर में आपने लॉन्ग ऐसे लिखना है, लेकिन साथ में उसकी साइटेशन करनी है, और फॉर्मेट आपके पास होगा कि आपने किस तरह इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं। अगर पॉसिबल हो तो उसमें 4-5 उसके लिटरेचर रिव्यू ऐड कर दें, और फिर उसकी मेन बॉडी में उसकी आर्गुमेंट के साथ डिस्कशन करें, और लास्ट उसका कंक्लूजन। ओके सर। और सर पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है और उसके बाद फिर हम टर्म पेपर तो लिखेंगे। सिर्फ इतना सा है कि आपको मुझे बताना है कि आपका टॉपिक क्या, और उसमें आपने साबित क्या करना। ओके, तो थैंक यू एब्स्ट्रैक्ट सर। को फौरी काइंड तौर पर आपको लिखना चाहिए, ऑलरेडी हाफ सेमेस्टर गुजर चुका है। ये एब्स्ट्रैक्ट तो पहले 1-2 हफ्तों का काम होता है, और उसके बाद आप टर्म जी, पेपर दिया उसके लिए। ये ओके। मैकडाम, आपने हाथ खड़ा किया था, बताइए। महमूदुल हसन, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी जी बताइए। सर, आवाज आ रही है? यस, हेलो जी बताइए, मुझे आवाज आ रही है। सर, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, जल्दी करें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैकबेथ और रिचर्ड थ्री के दरमियान आपने एक डिफरेंस क्रिएट किया था सर, वो क्या डिफरेंस, जरा शॉर्टली बता दीजिए। वो ये था कि रिचर्ड थर्ड, from beginning, very beginning, he was an evil creature. He was not Okay. actually exploited by external agencies only. Though